السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ پیارے بچوں آپ خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے 10th کلاس کا چیپٹر نمبر 7، جس کا نام ہے بھیم راؤ امبیڈکر، جو کہ پہلے یا پھر یوں کہیں پہلے نہ کہیں بلکہ یوں کہیں کہ سویدھان نرماتا ہے اور ملک کا آئین اور سویدھان بھیم راؤ امبیڈکر نے تیار کیا۔ تو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور آپ کو ہم بتا دیں کہ اس کے جو سوال جواب ہیں اس کے تعلق سے مارکیٹ میں ایک گائیڈ آئی ہے جو تقریباً 2 سال پہلے ہی لانچ ہوئی ہے، جس کا نام ہے مہم، اور یہ کلاس ہے 6 سے لے کے 12 تک ہے۔ اور اس گائیڈ میں دیکھو بہترین طریقے سے جو ہے سوال جواب، اور طلبہ کے لیے گویا کہ ایک بہترین تحفہ ہے۔ ہندی کے اندر کیا کہتے ہیں اور اردو میں قواعد کو کیا کہتے ہیں، اسی طریقے سے صفت ہے اور فعل ہے، اسم ہے، گویا کہ جتنے بھی قواعد ہیں ان کو ہندی میں کیا کہتے ہیں۔ اور جیسے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، مذکر کو پولنگ کہتے ہیں، مؤنث کو استری لنگ کہتے ہیں، کہ یہ اچھی گائیڈ ہے جو مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گی، اور ہم ڈسکرپشن کے اندر ان سر کے نمبر بھی ڈال دیں گے جن کے پاس آپ کو یہ گائیڈ مل جائے گی، تو اسی سے ہم سوال جواب کرائیں گے۔ بہت اچھی گائیڈ ہے۔ چلو دوستو دیکھتے ہیں پہلے لفظ اور معنی، جیسے کہ ہمارا معمول ہے سبق سے پہلے لفظ اور معنی دیکھتے ہیں۔ تفریق، تفریق کا معنی ہوتا ہے فرق کرنا۔ خود اعتمادی، اپنے آپ پر بھروسہ۔ حقوق، حقوق یہ حق کی جمع ہے۔ معمار، تعمیر کرنے والا، بنانے والا۔ عظیم، عظیم کا معنی ہوتا ہے بڑا۔ ذات، برادری یا طبقہ، سے اپنی عام زبان میں بھی اپنے ذات کہتے ہیں۔ اعلیٰ، اونچا، بڑا، عمدہ۔ آخر کار، نتیجے کے طور پر۔ لعنت، ناپسندیدہ چیز، برائی، خرابی، ان الفاظ میں استعمال ہوتا ہے۔ بیدار کرنا، جگانا۔ دستور، آئین، قانون، یہ ہم ہندی میں سے سویدھان بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے 4 سوال جواب ہیں جو ہم سبق پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا اصل نام بھیم راؤ سکپال تھا۔ یہ دوستو یاد رہے، یہ سوال بھی پوچھے جائیں گے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کا اصل نام کیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ 14 اپریل 1891 کو مدھیہ پردیش کے قصبہ مہو میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مہاراشٹر کے مہار خاندان سے تھا۔ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ان کا تعلق کس خاندان سے تھا، تو مہار خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ اس زمانے میں چھوت چھات کی وبا عام تھی۔ ڈاکٹر امبیڈکر کو بچپن ہی سے اس قسم کے بھید بھاؤ اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دفعہ وہ اسکول جا رہے تھے کہ بہت زیادہ بارش شروع ہو گئی۔ وہ ایک مکان کی دیوار کے سہارے کھڑے ہونا چاہتے تھے۔ مکان کی مالک نے انہیں ڈانٹا اور وہاں سے چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چھوٹی ذات کا کوئی فرد اس کے مکان کی دیوار کے پاس کھڑا رہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر اپنے استادوں کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ستارہ کے ایک اسکول میں امبیڈکر نامی ایک استاد تھے۔ آگے یہ بھی سوال پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں سے اپنے تھوڑا یاد دہانی کر لیں گے۔
सितारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामे एक उस्ताद थे जो ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वो सब के साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता एक ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। भीमराव अंबेडकर बन गए। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि उन्होंने अपने नाम में भीमराव अंबेडकर शामिल क्यों किया, तो इसको थोड़ा जहन में रखेंगे। तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक़ और मेहनत का जज्बा था, इसलिए वो आगे ही बढ़ते गए। आखिरकार आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिल गया। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार हो गया। ये भी दोस्तों सवाल पूछेंगे कि छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान हुआ। ठीक है, तो क्या नुकसान हुआ कि मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार हो गया। ये छूत छात से बड़ा नुकसान हुआ। अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और ना इंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को बेदार किया, उनके दिल से खौफ दूर किया और उनमें खुद एतमादी पैदा की। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। आगे ये रेगिस्तान में ये सवाल ही पूछेंगे, समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो तालीम बेहद ज़रूरी है। तालीम बहुत सी बुराइयों को ख़त्म कर देती है। उन्होंने कमज़ोर तबकों की तालीम के लिए इदारे कायम किए, स्कूल और कॉलेज खोले, मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर भी तवज्जो दी, उनके लिए समाज में बराबरी के हुकूक की वकालत की। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यकांग पर जोर दिया। उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। ये सवाल भी पूछेंगे कि भीमराव का अहम कारनामा क्या है, तो उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। इसीलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मामार कहा जाता है। भारत का ये अजीम रहनुमा 6 दिसंबर 1954 को इस दुनिया से चला गया। ठीक है, तो इनको हम बाबा साहब अंबेडकर भी कहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर भी कहते हैं। अब इनके सवाल जवाब देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था, उनका ताल्लुक किस खानदान से था, तो उनका पूरा नाम था भीमराव सकपाल। ठीक है, भीमराव सकपाल उनका नाम था और उनका ताल्लुक किस खानदान से था, तो महार खानदान से। दूसरा है, भीमराव के नाम के आगे अंबेडकर क्यों शामिल हुआ, ये हम बता देंगे आगे सवाल जवाब। छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान हुआ, तो मुल्क को ये नुकसान हुआ कि मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार हो गया। भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है, अभी पढ़ के आए हैं कि उन्होंने मुल्क का दस्तूर तैयार किया। नीचे ये कवायद हैं, ठीक है, बता देंगे आपको आगे। नेक्स्ट पॉइंट, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में मुज़क्कर और मुअन्नस छांट लिखिए। तो हम ये देखते हैं, जो हमारी गाइड है मुहिम की, उससे आप दोबारा देख लीजिए। ये गाइड है जान पहचान की, जो आपको कक्षा 6 से 12 तक मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी गाइड है। अब इनके सवाल जवाब देखेंगे और ये सवाल जवाब की जो पीडीएफ तैयार की गई है मुहिम से ही की गई है। तो भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था, उनका ताल्लुक किस खानदान से था, तो अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव सकपाल था, उनका ताल्लुक महार खानदान से था।
सवाल नंबर 2, भीमराव के नाम के आगे अम्बेडकर क्यों शामिल किया गया? जवाब, सितारा स्कूल में जब भीमराव तालीम हासिल कर रहे थे तो वहाँ अम्बेडकर नामे एक उस्ताद थे जो जात पात छूत छात को नहीं मानते थे। उन्हीं से मुतासिर होकर भीमराव ने अपने नाम में अम्बेडकर या यूं कि अपना नाम अम्बेडकर रख लिया या शामिल कर लिया। छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान हुआ? छूत छात से नुकसान हुआ कि मुल्क का एक बड़ा तबका जहालत और गरीबी का शिकार हुआ। गरीबी को गुर्बत भी कहते हैं। ठीक है, लफ्ज गुर्बत आया किताब में, एक ही बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? तो मुल्क का दस्तूर उन्होंने लिखा। ये क्वायद की बात है, तो आप देख सकते हैं मुजक्कर कहते हैं स्त्रीलिंग को, सॉरी मुजक्कर कहते हैं पुलिंग को। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ लिखा हुआ है पुलिंग। तो ये छांटने थे, अलग अलग करने थे, तो रास्ता क्या है? ये मुजक्कर है, मौका मुजक्कर है, खौफ मुजक्कर है, जुल्म मुजक्कर है, यानी पुलिंग है। मोनस कहते हैं स्त्रीलिंग को। तो मुसीबत, लफ्ज मुसीबत स्त्रीलिंग है, तालीम स्त्रीलिंग है, रुकावट स्त्रीलिंग है, मेहनत, कौम, जहालत, ये तमाम के तमाम स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब इनके खालिस्तान देखेंगे, खाली जगहों को भरिए। अंबेडकर का असल नाम क्या था? तो अंबेडकर का असल नाम था भीमराव सकपाल। ठीक है, तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई खालिस्तान का सामना करना पड़ा, तो कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। छूत छात की खालिस्तान ने मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया, तो लानत ने, छूत छात की लानत ने मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया। समाज में बाइज़ जिंदगी गुजारने के लिए खालिस्तान बेहद ज़रूरी है, तो तालीम बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप हजरात को ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।